Hello everyone, we are just waiting to let people join us and then we'll start. Hello everyone, we are just waiting for others to join. We'll start at 5 p.m. So right now I'm connected with two accounts, so I will try to manage both. Hey, hi Vignesh, how are you? Hi Kanishka. Oh wow, Kanishka is able to join from both the accounts. Wow. Okay, she has left the other one. So we are waiting for others to join. We'll start at 5 p.m. So I was not sure कितने लोग आने वाले हैं, so I made this arrangement. दोनों अकाउंट से हो जाए. I should arrange some music. Let the music go on for some time. Wait, I'll let you join with me. It's fine. It's you and me only. We can talk. Hey, hi man. I'm good. What about you? Where are you these days? Sorry? I'm in Erode, Tamil Nadu. Oh, Tamil Nadu. Okay, good. I'm coming to Hyderabad. Yeah, I'm sure, man. I'll be coming some days. No, I've been Yeah, posted there. sorry? I'm posted there. I'll be working over there. My current Okay, okay, company is cool. based in Hyderabad. Acha, acha, cool. Yeah. Nice, nice. And one more thing I was about to ask. How about Rakshit? He is also good. Okay, okay, okay. Nice, nice, nice. Yeah. He's the, where is he actually? He's Agra only. Right now you are asking where is he or He across here or somewhere around? no, he's not here. Somewhere he's sleeping right now. Habits don't change, only places change. Okay. You're aware I have written a book. Which one? Yeah, are you aware that I have written a book? Yeah, 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 yeah. I just saw your post actually. That was really nice actually. This is it. Congratulations for that. Yeah, I got to know about it. Yeah, Yeah, thanks, man. it's an achievement for me. Okay, okay, great, Yeah, great. it's Really on cool, finance. nice. Mm-hmm. Okay, Yeah, okay, cool. good man. Okay, okay. Sure, It's fine. sure man. Yeah, Okay, see you then. great. Yeah, Have a sure. nice talk. Yeah, yeah, yeah. Great man. I don't know how to make you unjoin. Okay, he's got himself. Okay, guys, I'm waiting for others to join, and let's see what happens. How many people join? Otherwise, we'll start the session as it is, and we'll discuss about the book. Mm. So actually, I'm using two accounts. So my two accounts are operating simultaneously as we speak to two different accounts. So because if the comments come from to and fro, so just don't act like a maniac that who is he talking to. I might be talking to some other account. Or you can join at the rate Weekend Knowledge 101 over the Instagram. You can shift all your details to that side, so you will be there as well. Hi Mona Kokar Kokar.
Okay. Mm. Okay, 3 minutes more, then we'll start with the questions that were there. Is it possible to? Okay, we'll start in 3 minutes. Mm. I should have invited someone. Hi Niranjan. Niranjan, if you're not aware that who am I just written a book called How Much Money is Too Much Money. So we are waiting for that. If you have any questions related to finance, you can ask me to make you join on my video chat. Then you can ask me a question. Doesn't matter it's silly or tough. So we're waiting for that. Hi Vaneet. I know you. Do you wanna join with me? Okay, let's make you join with me. Let's see. Hey Chanan. Manito can join with me. It's fine. Okay. I don't know what happened. What she did. Okay, fine. Hi Chanan. Guys, we're waiting for next few minutes. Okay, so we can start. Okay, so right now I'm here to talk about my book called How Much Money is Too Much Money. So we are going to discuss about that. मैंने कुछ दिनों से इसके बारे में आई हैव लेफ्ट सम ask कोई क्वेश्चन टाइप वर्क कि यू कैन आस्क मी सम क्वेश्चन रिलेटेड टू फिनांस और रिलेटेड टू माई बुक इफ़ यू हैव रेड इट बाय एनी चांस. सो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए थे जिसके बारे में आई कैन टॉक अबाउट. सो पहला क्वेश्चन ये था कि मनी और वेल्थ में क्या डिफरेंस होता है. सो नाउ इट्स अ वेरी, जितना सिंपल सुनने में लगता है उतना सिंपल है नहीं है कि मनी और वेल्थ में क्या डिफरेंस होता है. सो मनी इज द फाउंडेशन ऑफ वेल्थ. पैसा आज है कल नहीं है. आज की नींव बोई हुई कल रिटर्न लाके देती है. मीनिंग मनी इज द पाइपलाइन टू क्रिएट अ वेल्थ. इफ यू वांट टू जनरेट एन अमाउंट ऑफ वेल्थ आपको कुछ आज पैसा डालना पड़ेगा. So that's the answer. If you want to create your own net worth, you need to start investing from today. Now, wealth क्या होती है? So wealth is something like आपका घर हो गया, आपका दूसरा बिजनेस हो गया, आपका क्या बोलते हैं कि रेंटेड अपार्टमेंट हो गया, या ऐसे सब चीज़ें आपकी वेल्थ में ऐड होती है जिसकी अपने आप में एक वैल्यू है और उस वैल्यू से वो बढ़ते 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 इंक्रीज हो रही है. दैट इज कॉल योर नेटवर्थ. नो पीपल थिंक कि मेरे पास तो गाड़ी है, ये सब चीज़ें हैं, तो क्या वो विल इट बी इंक्लूडेड इन पार्ट ऑफ द नेटवर्थ? नो. समथिंग विच डेप्रिशिएट्स फ्रॉम द स्टार्टिंग वैल्यू. कोई अगर चीज़ एक पॉइंट पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बुक है 300 रुपीज़ की, नेक्स्ट डे जाएं, क्या ये बाय एनी चांस इज गोइंग टू डिक्लाइन टू 290? नहीं होने वाली, बिकॉज इट्स अ बुक इन इटसेल्फ इज नॉट गोइंग टू डेप्रिशिएट इन नॉलेज. Okay, so this is the part of the net worth. So मेरे पास एक सेकंड क्वेश्चन आया था, what is hi Vinay, yeah you are my weekend knowledge section. Okay, so second question ये आया था, when you can stay with me if you want to know any questions related to stock market. तो मुझे हमेशा मुझसे पूछता रहता है मार्केट क्या होती है. So now you will learn about it. हाँ, सेकंड क्वेश्चन ये आया था कि 2 to 3 years ऑफ इन्वेस्टमेंट, अच्छी वाली इन्वेस्टमेंट बता दो कोई. सो मैंने ये सबकी आदत है. इट्स नॉट
समथिंग इररेलेवेंट. बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि यार एक कोई एक कोई बता दो, कोई एक फंड बता दो जिससे हो जाएगा, एक फंड बता दो. सो पहली बात मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि फंड्स क्या होते हैं, ठीक है ना. सो फंड्स इज समथिंग एल्स देन स्कीम. So I've recently shown my portfolio. You can check it on my IGTV of Weekend Knowledge 101. So स्कीम्स अलग होती हैं और फंड अलग अलग होते हैं. मेरे पास एक बहुत अच्छा एग्जांपल है. सो ये कि मैगजीन है दैट आई यूजली रेफर, इसमें आपको आराम से समझ में आएगा कि क्या होती हैं. सो सी, पता नहीं दिखेगा नहीं दिखेगा, अगर आपको दिख रहा है या. सो ये स्कीम्स के नाम हैं. सो मैं पढ़ देता हूँ. मैं इंडिया बुल्स है, ब्लू चिप, इंडिया बुल्स, निफ्टी, इन्वेस्को. सो ये लार्ज कैप के अपने आप में स्कीम्स हैं. सो ये अलग अलग स्कीम्स होती हैं अलग अलग कंपनीज की. पहली इंपॉर्टेंट बात, बैंक्स और म्यूचुअल फंड दोनों अलग अलग एंटिटी हैं, दोनों का आपस में कोई रिलेशन लेना देना नहीं है. आप जाओगे, आप ये नहीं कह सकते बैंक में जाके कि मुझे आप मेरा म्यूचुअल फंड कर दो, कोई नहीं करेगा. दे विल आस्क यू टू गो एंड सेपरेट म्यूचुअल फंड ऑफिस, जहाँ उनकी जो रीजनल लोकेशन में अवेलेबल होंगे आपको वहाँ भेज देंगे या आप ऑनलाइन करिए. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, फंड जो होता है उसका एक फंड मैनेजर होता है जो अलग अलग फंड्स को, अलग अलग स्कीम्स को एक टाइम पे मैनेज कर रहा होता है. ज़रूरी नहीं है कि एक फंड मैनेजर, मान लो आप समझ लिए 3 बैंक को मैनेज करने के लिए एक बड़ा मैनेजर हो सकता है. इस केस में सेम होता है कि अलग अलग स्कीम्स हैं. लाइक से आईसीआईसी की को, मतलब किसी एक फंड का ही होगा वो, लेकिन अलग अलग स्कीम हो सकती हैं. आईसीआईसी का एक मैनेजर है तो 3 अलग अलग स्कीम मैनेज कर रहा है, या को मैनेजर्स हैं एक ही चीज़ के. सो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन दी स्कीम, कॉन्स्टिट्यूएंट स्कीम में कैसा ऑपरेट कर रहा है, एक्टिव है, पैसिव है, जैसा भी चीज़ें हैं. ये सारी डिटेल आपको मेरी बुक में मिल जाएगी. सो जो लोग पूछते हैं मुझे कोई एक स्कीम बता दो, वो गलत इसलिए नहीं पूछना चाहिए बिकॉज दी गोल्स आर नॉट सेम फॉर एवरीवन. गोल्स हर एक किसी के लिए सेम नहीं होते हैं. अब मैं मुझसे पूछा था कि 2 to 3 ईयर्स के बीच में आप मुझे कोई एक स्कीम बता दीजिए, तो उसके हिसाब से हम हो जाएगा उनका. सो देखिए 2-3 साल कोई बड़ा टेन्योर नहीं है मार्केट में रह के रिटर्न्स कमाने के लिए. पॉइंट नंबर 1, अगर आपका सिर्फ एजेंडा मार्केट रिटर्न्स कमाना है. अगर आपका एजेंडा मार्केट में रिटर्न्स कमाना नहीं है, मगर ऐसे ही आपके पास एक खाली पैसे पड़े हुए हैं, आपने उसको एक जगह डिपॉजिट करने हैं या फिर रखने हैं, तो उसके लिए लिक्विड फंड्स होते हैं, मनी मार्केट फंड्स होते हैं. मनी मार्केट मतलब जो 1 साल से अंदर जो जिसकी मेच्योरिटी होती है. लो ड्यूरेशंस होते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन होते हैं. इन सब का टाइम ना आपको देखना पड़ेगा कि 1 से 3 साल के बीच में मेरे ख्याल से शॉर्ट ड्यूरेशन आते हैं जिसका टाइम पीरियड 1 से 3 साल के बीच में चल जाता है. अगर आप वही पैसा री इन्वेस्ट करते रहें तो वो लो ड्यूरेशन में फ़ायदा ये होता है, इसमें इतनी सेंसिटिविटी यानी फ्लक्चुएशन ज़्यादा नहीं होती है. ये अपना आपको ब्याज देता रहता है, ब्याज यानी आपको इंटरेस्ट मिलता है. नाउ डोंट कंफ्यूज दी रेट ऑफ इंटरेस्ट इन इक्विटी मार्केट एज कम्पेयर टू डेट. डेट अलग अलग चीज़ होती है और इक्विटी मार्केट आप रिटर्न कमाते हैं और डेट मार्केट में आप ब्याज कमाते हैं. इट्स जस्ट लाइक आपने किसी को पैसा उधार दे दिया है, अब आप उस पर ब्याज ले रहे हैं. बैंक आपको पैसा देती है, आपसे ईएमआई लेती है ना, उसमें ब्याज इंक्लूड होता है. सेम गोज हेयर. इट विल अर्न इंटरेस्ट फ्रॉम यू in the form of it will pay you interest in the form of return. आपने वो रिटर्न दे दिया, ठीक है. सो बात कर रहे थे हम शॉर्ट ड्यूरेशन की. सो शॉर्ट ड्यूरेशन, आपको शॉर्ट ड्यूरेशन फंड इसलिए चाहिए कि उसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं चाहिए आपको, क्योंकि आपको पैसा आपको सेव रखना है. आपको पैसे पे इतना रिटर्न नहीं कमाना, आपको सेव करना है. आप चाहते हो कि ओवर एंड अबव इन्फ्लेशन पैसा आता रहे आपके पास. सो दैट इज वन थिंग कि आपके पास पैसा आता रहेगा. सेकेंड थिंग इज कि 3 साल के लिए वन मोर गुड थिंग इज ELSS, which is equity linked saving scheme. This is for those people who want to save on taxes. So equity linked saving scheme का 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है. इट्स गुड फॉर दोस्त, और जिनसे मुझसे पूछा था उन्होंने मेंशन करा था कि उनकी इनकम इतनी है. इफ दे आर नॉट प्लानिंग देयर ATC इज अ एग्जम्पशन, माफ करिएगा, डिडक्शन इन
टैक्स ब्रैकेट, सो 1.5 लाख तक का आप ले सकते हैं. सो बाय एनी चांस अगर आप पे टैक्स बहुत ज़्यादा आ रहा है तो आप यू कैन बाय ई एल एस एस बाय सीइंग कि आपको कितने का टैक्स बन रहा है उतने का आप एक ई एल एस एस करवा लीजिए. 3 साल तक इन्वेस्टेड रहने में रिटर्न्स अच्छे अच्छे नहीं बोलूँगा, ठीक ठाक आ जाएंगी इन केस मार्केट क्रैश नहीं करती है तो. अनलाइक सिचुएशन लाइक पैंडमिक नहीं आती है तो मार्केट सही ठीक ठाक रिटर्न दे देती है. सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है ई एल एस एस में आपका पैसा, मान लेते हैं कि आपका ई एल एस एस पैसा जीरो हो गया, आपने 30,000 डाले थे, 30,000, 3 साल बाद 30,000 29,000 रहेगा. ओके, आप अपने टैक्स पे कर रहा, उसकी वैल्यू तो उसी टाइम जीरो हो गई. टेक्निकली आपके वेल्थ में से 30,000 तो चले गए ना. यहाँ बाय एनी चांस रिटर्न इज गोइंग टू कम टू यू इन सम मैनर इन फ्यूचर. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझना दैट ये एल एस एस इज ओनली नॉट ओनली गुड फॉर सेविंग्स बट इट ऑल्सो गिव यू सम सॉर्ट ऑफ रिटर्न इन बीइंग इनटू द मार्केट. ये एक क्वेश्चन था तो मैंने ई एल एस के बारे में बताया. अब मैं बताता हूँ बुक के बारे में. मुझसे कई लोगों ने पूछा है कि टेल मी समथिंग अबाउट योर बुक, कि बुक में क्या है, आप यू नो बुक में क्या लिखा है ऐसा जो दूसरी की किताब से लिखती हैं. सो बुक के बारे में जो मेरी बुक है हाउ मच मनी इज टू मच मनी, सो ये बुक है. इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको मैप करके थोड़ी चीज़ें बताना चाहता हूँ जो लोगों को नहीं आती हैं. कुछ बातें ये हैं कि लोग मुझसे सवाल पूछते थे कि ये जो बुक है इसके पीछे एक इंसिडेंट है, जो पीछे पूरी कहानी है जो हुई थी, कि मुझे आप बताइए कि वाई यू हैव रिटन अ बुक एट सच एन अर्ली स्टेज. तो उसके पीछे आंसर ये है, देर वॉज एन इंसिडेंट दैट हैज टुक प्लेस रिसेंटली. तो ये था कि लोग, जब भी मैं कहीं जाता था बाहर अपने दो दोस्तों के संग, तो एक कोई मेरा म्यूचुअल फ्रेंड था जो उसके बुक का को ऑथर भी मिस्टर प्रवाल जैन, तो मेरा वो काफ़ी अच्छा दोस्त है. वी आर बेस्ड फ्रॉम द सेम सिटी. सो मुझे अक्सर लेके जाता था अपने दोस्तों के पास, यार पता नहीं इसका सवाल है, बता जरा इनकी ये सैलरी कैसे मैनेज करे सो ये सारे सवालों के जवाब, मुझसे बड़े अजीब अजीब क्वेश्चन आते थे मेरे पास. दैट टाइम आई वाज स्टडिंग द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रिसर्च एट दैट मोमेंट. मैंने ये कॉमन लोग हैं, नॉन फाइनेंशियल बैकग्राउंड के लोग हैं, तो इन लोगों के लिए क्या करा जाए. सो दी आंसर वॉज कि इनको एक सिंपल रीजन ला के दो दैट वाई दे नीड टू लर्न द वे दे शुड स्पेंड. लोग कहते हैं सारी जिंदगी बता दी हमारे, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट क्लास, फर्स्ट स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं मैं. बेटा A+ ले आओ, बेटा बस पास हो जाओ, बेटा B+ ले आओ. जब आपकी कहानी ग्रेड से हट के परसेंटेज पे पहुंच जाती तो बोलते हैं बेटा 90% लेगा ना, 90% कंसिस्टेंसी चाहिए. तो आप हमेशा सारी जिंदगी कमाने में लगे रहते हो. फिर आपको एक घर वाले दिलासा देते हैं या दोस्त दिलासा देते हैं, एक बार 10th हो गई फिर जिंदगी सेट है, एक बार 12th हो गई फिर जिंदगी सेट है, और एक बार जॉब लगे जिंदगी सेट है. वॉट पीपल डोंट नो इज लाइफ की लगनी तब स्टार्ट होती है जब जॉब मिल जाती है. बिकॉज दैट मोमेंट you start earning and you don't know how to spend the money. Now you are in trap because never ever you were taught about spending the money. Now how are you going to spend the money if you don't know how you should be doing it? What you will do? First you will fulfill all your desires. Once you fulfill the needs, जो आपकी necessities हैं, once you fill it, now you're gonna fulfill your desires. और desires का कोई अंत नहीं है. आज आपने एक्टिवा लिया, कल को आपको बाइक चाहिए, फिर सबको कार चाहिए, फिर अच्छी वाली कार चाहिए, फिर एक प्रीमियम कार चाहिए, और आप उसके पीछे भागते रहते हैं. Is there an end to any desire? फिर तो ये है रिक्शा वाले से लेकर सीधा अंबानी है, कब तक भागते रहेंगे? Till what time you will be running behind the wealth? अब सारी कैटेगरी ये वाली नहीं होती. कुछ कैटेगरी बोल होते हैं कि ठीक है घर बार बसा लिया, बच्चे बच्चे पैदा कर लिए, अब तो उनकी लाइफ सेट करने में निकाल दो. ना पहला ठीक है ना बाद में ठीक है, फर्क सिर्फ इतना है उसकी वॉलेटिलिटी का.
एक बहुत तेज तेज भाग रहा है, ज़्यादा ज़्यादा भाग रहा है, एक कम कम भाग रहा है, भाग दोनों रहे हैं, दोनों को पता नहीं भाग भाग क्यों रहे हैं. सो एक बिल कोपोपलेंट है, काफ़ी उनका फेमस कोट है, यू कीप ऑन रनिंग अप एंड डाउन द फील्ड विदाउट स्कोरिंग इफ यू डोंट नो व्हाट द गोल इज. आप भागते रहो फुटबॉल वाली फील्ड में, जो भी फील्ड है उसमें भागते रहो ऊपर नीचे, क्या होगा उसको, कोई अंत थोड़ना है उसका. सो यही बात उसमें कही गई है. तो उनका कोट का कहने का मतलब यही था, दैट यू कीप ऑन रनिंग अप एंड डाउन द फील्ड विदाउट स्कोरिंग. वो एक बात थी. और बुक में ऐसे कई सारी चीज, तो बुक का मैं बात कर रहा था कि बुक क्यों लिखी गई है. तो ऐसा इंसिडेंट मेरे संग हुआ था, लोग मुझसे पूछते थे कहाँ इन्वेस्ट करें, इन्वेस्टमेंट होती क्या है, व्हाट आर म्यूचुअल फंड्स, हमें तो इसकी ABCD भी नहीं मालूम, कैसे करें. सो ये एक बहुत ही जर्नलाइज क्वेश्चन है. आदि इन हिंदुस्तान की आबादी को नहीं मालूम व्हाट आर म्यूचुअल फंड्स, हाउ यू शुड बी इन्वेस्टिंग इनटू इट. इसका जवाब बहुत सिंपल है. यू स्टार्ट, आप जब पढ़ाई करते हैं, सीधा 12th स्टैंडर्ड की पढ़ाई की आप एक दिन में कर लेते हैं. यू हैव बीन लर्निंग फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड, आपका बेस बनाते हुए चलते हैं, आप धीरे धीरे ग्रो करते हैं. फिर जाके आप कहीं ना कहीं एक पोजीशन पे पहुंचते हैं जहां आप बोलते हैं कि हाँ मुझे थोड़ा बहुत, मैं सीजनड पर्सन बनने जा रहा हूं. सो यही केस इसमें फॉलो होता है. यू स्लोली स्लोली बिगिन इनटू इन्वेस्टिंग. नाउ व्हाट आर स्टॉक मार्केट्स, whether you should choose stock markets or mutual funds. Now, mutual funds are diversification of the stocks. If I'm talking about equity, ये बस आपको अलग अलग चीज़ों में बांट देता है, आपको डाइवर्सिफिकेशन देता है, आपको अलग अलग चीज़ें प्रोवाइड करता है. आप को नॉलेज नहीं है व्हाट आर स्टॉक्स, नाउ यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, व्हाट विल हैपन. इट्स लाइक ड्राइविंग द 4-wheeler कार with all the capacity seated filled, and you sit into the car and you start driving. You don't have the driving license, you don't know how to drive a car, and what will happen? You will crash. You will crash in seconds because you don't know what's the first gear. आपको gear का नहीं मालूम, आपको क्लच का नहीं मालूम, आपको एक्सीलेटर का नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम, and you start driving. What will happen? You will die with other 4 people in there. कहने का मतलब ये है कि यू हैव द मनी बट यू डोंट नो हाउ टू स्पेंड द मनी, आइदर ऑन स्टॉक मार्केट, आइदर ऑन योर नेसेसिटीज, आइदर ऑन योर वांट्स, बट यू वांट टू डू इट. व्हाई? So there's no planning into investing which merely says that you are going to die today or tomorrow. It's just the difference between timeline. Either you are going lucky by any chance that this is going to happen. Now, why mutual funds? So now there is same scenario. गाड़ी कोई बंदा चला रहा है, आपने साथ में एक, आपने बोला गाड़ी तुम चलाओ मैं बैठा हूं, मुझे चलानी, मुझे नाउ यू नो द डेस्टिनेशन. आपको मान लीजिए दिल्ली से मुंबई जाना है. नाउ यू हैव द ड्राइवर. हमने बोला पैसा मैं दे दूंगा, ड्राइविंग तुम करो. आपने ड्राइवर हायर कर लिया, बट गाड़ी मेरी है, पैसा मैं दे रहा हूं, ड्राइविंग तुम करो. नाउ द चांसेस ऑफ रीचिंग योर डेस्टिनेशन is close to 100% because you have the expert driver on the board. What are the chances that you will not die? Very less, because he has been doing it for his whole zindagi. So here's the difference. एक बंदा गाड़ी चला रहा है बिना लाइसेंस के, without knowing about the gears, clutch and whole system about the car, and the other one is doing the same thing which he has been hired for. एक स्पेशलाइज है और एक जो मैंने अभी एक्सप्लेन करा. सो यही डिफरेंस आया था, और यही म्यूचुअल फंड का काम है. म्यूचुअल फंड इज हैंडल्ड बाय एन एक्सपर्ट मैनेजर एंड अ टीम ऑफ पीपल अंडर हिम विच इज हुज होल आइडिया इज टू अर्न मेक यू रिटर्न. अगर वो कमाएंगे उसका धंधा चलेगा नहीं, उसका काम ही वही है. नाउ व्हाट डू दे गेट आउट ऑफ इट? दे गेट कमीशंस. उन लोगों को कमीशन मिलती है.
अब उसमें कभी एक्सपेंस रेशियो लिखा होता है, वो एक्सपेंस रेशियो उन लोगों की अर्निंग्स होती है जो इन्वेस्टर के हाथ से निकलती है। अगर इन्वेस्टर 100 रुपये पे 10% रिटर्न कमा रहा है, 110 रुपये बन रहा है, उसे एक रुपया देने में क्या प्रॉब्लम है भाई? तो 1 रुपया तू ले जा, जिसने काम करा है आपके लिए, वो आपसे सिर्फ 1% मांग रहा है आपकी पूरी वेल्थ का, उसमें क्या बुरा है? इज देयर एनी प्रॉब्लम अबाउट इट? यू आर गेटिंग एक्सपर्ट ड्राइवर on your car which has the 100% probability of making you reach to your destination. What's the point? So you, आपको मैंने बता दिया कि that you have a mutual fund person who is going to handle your money. Now mutual fund कई तरीके के होते हैं, they are different kind of varieties. ये समझ लीजिए म्यूचुअल फंड एक बुफे है, आप डिनर करने आए हैं, आप जो चाहे वो खा सकते हैं, लेकिन लिमिटेड कैपेसिटी में, जो बुफे का रूल है। सो बूफे लगा हुआ है, अब आप लोग खाना खाना है। सो बूफे में कई इंडियन है, कई कॉन्टिनेंटल है, कई चाइनीज़ है, और कई साउथ इंडियन है, कई नॉर्थ इंडियन है, अलग अलग तरह की चीज़ें बनी हुई हैं उसमें। अब सब तो खा नहीं पाएंगे एक बार में, पेट तो इतना सही है, अब खाना इतना सारा है, तो अब ऑब्वियसली यू वोंट बी एबल टू ईट एवरीथिंग। सो अब क्या करना है कि ऐसे बटा हुआ है मामला, और म्यूचुअल फंड में यही दरिया है जो ऐसे पूरी बुफे की तरह फैली हुई है। नाउ ये से मैं घर से सोच के आया था, एक तो मैं साउथ इंडियन खाऊंगा, कॉन्टिनेंटल खाऊंगा और डेजर्ट खाऊंगा बस। आपने वहां गए, आपने साउथ इंडियन उठाया, कॉन्टिनेंटल उठाया और डेजर्ट खाया। रेड सबसे एंड में, उससे पहले कॉन्टिनेंटल, उससे पहले साउथ इंडियन। नाउ इस पूरे एग्जाम्पल में एक बहुत ही सिंप्लिसिटी है और क्लैरिटी है। फर्स्ट, you have the goal in your mind just before you left your home. You had the clarity कि वहां जाके ये खाना है। आधे से ज्यादा जनता वो होती जो वहां जाके सोचती क्या खाना है, इवन इफ दे आर अवेयर कि आज बुफे में क्या है। जो लोग खा रहे होंगे वही खा लूंगा, इस मेंटालिटी के लोग भी उसमें आएंगे। देखूंगा चख के कि क्या अच्छा है, इस मेंटालिटी लोग भी होंगे। और कुछ ऐसे परसेंट के लोग भी होंगे जो सोच समझ के हैं कि हाँ यार मुझे पता है कि ये यहाँ खाऊंगा, ये यहाँ खाऊंगा, ये ऐसे करूंगा, ये ऐसे करूंगा। देखिए, आपने और बाकी सब ने सेम अमाउंट ऑफ मनी का कूपन लिया है वो बुफे खाने के लिए। सो एक बात तो समझ लीजिए, पैसे लिमिटेड हैं और वो आप ही के हैं जो आपकी जेब से निकले हैं, और अब उस पर ले रहे हैं ट्रायल। Will it make any sense till your death? I don't think so it's gonna make any sense till your death. So आपका काम सिर्फ इतना है, अपने पैसे को, यूज योर मनी फॉर योर ओन desires and your goal that you want to fulfill. If you want to buy a car 5 years down the line, 6 years down the line, if you want to buy a house 6 years, 7 years down the line, if this is a precise goal. सो बुक के अंदर यही बताया गया, हाउ मच मनी इज टू मच मनी में, कि भागो मत किसी चीज के पीछे। स्टॉप रनिंग बिहाइंड दी वेल्थ, क्रिएट योर ओन वेल्थ विच इज लिमिटेड फॉर योर सेल्फ। यू हैव अ गोल, आपके पास अमाउंट है, यू हैव अ गोल, यू हैव द अमाउंट, नाउ यू नो द रोड। उस रोड पे ड्राइवर कौन है? फंड मैनेजर। वो बोल रहा है साहब आपको मैं लेके जाऊंगा वहां तक, साहब गाड़ी में चलाऊंगा, पैसे आप डालो। नाउ द डेस्टिनेशन नीड्स टू बी डिसाइडेड बाय यू। आपने डेस्टिनेशन डिसाइड करी कि हाँ सर मैं यहां से जाएगा तो हम चलेंगे। नाउ आई सी समवन sending me, if someone has the question they can ask me, if they have any question related to the market, I'll hear their questions, or they can join me from both accounts. मैं दोनों अकाउंट से बोल रहा हूँ, अपने वीकेंड नॉलेज एंड ऋषभ बहल से। if they have any questions they can ask me by writing into it or asking me to make them join on my Instagram. I'll give a 5-second, 10-second break. What is this?
Okay, so no questions from both side. Okay, so yeah, so I was saying about the driver, goal and the car. बुक इसी के ऊपर लिखी गई है दैट वंस यू हैव द गोल, दिस बुक्स टॉक्स अबाउट मेकिंग द गोल, लर्न टू स्पेंड अर्नेस्टली. आपने गोल भले ही बना लिया, और यहाँ पे मैंने बहुत अच्छा इसके बुक के पीछे मैंने लिखा हुआ है, I'll just read it out. The book flips the coin and talks about how to spend money effectively instead of earning money. Why people have stopped living the dream. लोगों ने सपना देखना छोड़ दिया है. क्रिएटिविटी डस्टबिन में आजकल. फिर आगे चलते हैं. As a kid, ask the kid and he will tell you how to save money for the goal. बहुत ही it's a very childish thing, and I'll read further. He exactly knows how to buy a ticket to the fair which is comparatively expensive than his money, his pocket money. Now it's if you remember, आज तो वैलेंटाइन डे भी है, so it's very relatable कि you want to celebrate Valentine with your girlfriend or your boyfriend, and obviously you get some sort of money either from your friends or from your parents as the form of pocket money every month. Now you already knew that six months ago you knew that you have to go and buy chocolates for your girlfriend or your boyfriend. You want to going to buy something for your the partner, so you were saving the money because you are aware कि यार वो गोल आने वाला, आपके पास गोल था ना कि आपको वो अचीव करना है. नाउ यू हैव स्टार्टेड सेविंग फॉर दैट गोल, दैट्स व्हाई यू स्टार्टेड डूइंग इट. सो दिस से समथिंग, आपकी अर्निंग के कंपैरिजन में वो गोल की जो वैल्यू है बहुत बड़ी है. फॉर एग्जांपल लेते हैं, आपको 10 रुपए पर मंथ मिलते हैं. एग्जांपल लेते हैं, काफ़ी ही हाइपोथेटिकल सिनेरियो. लेट्स से आपको 500 रुपए इकट्ठा करने थे, आपको 10-10 रुपए हर महीने मिल रहे हैं. 6 महीने से 60 रुपए हुए कुल मिला के आपके पास. तो दैट 60 रुपीज इज नॉट इनफ टू ओके, थैंक यू मनीत. ओके, सो 60 रुपीज इज नॉट इनफ टू रीच द गोल. आपको चाहिए 500 है आपके पास, 60 रुपए अब क्या करेंगे? इवन आफ्टर सेविंग फॉर ऑल दीज मंथ्स, यू विल आस्क योर फ्रेंड्स, यू विल टेक रिसोर्सेस. अब वो फ्रेंड्स हट के आजकल हम बड़े हो जाते हैं, हमारे लोनर बैंक बन जाते हैं, हम बैंक से लोन लेते हैं. वैसे हम क्या दोस्तों से मांगते हैं पैसे, वैसे इकट्ठे करते हैं और कोशिश करते हैं कि मेरा जो 500 रुपये गोल है पूरा हो जाए. नाउ यू थिंक एंड एनालाइज. आपके पास गोल था, आपने पैसे सेव करे एंड यू अचीव्ड इट. हाउ? ये किसने सिखाया आपको कि पैसे कैसे सेव करते हैं? किसने सिखाया? इसके लिए बुक पढ़ने की जरूरत थी क्या आपको? नहीं ना, बुक पढ़ने की जरूरत नहीं थी ना आपको. तो फिर आज क्यों जरूरत पड़ती है? टू मेक पीपल यू अंडरस्टैंड दैट इफ यू वांट टू बाय अ हाउस, यू नीड टू स्टार्ट सेविंग माय फ्रेंड. यू टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग. बस वो सेव की जगह इन्वेस्टमेंट चेंज हो गई और कुछ चेंज नहीं हुआ है. आजकल बैंक से अच्छा रिटर्न मार्केट देती है, इसलिए लोगों ने बैंक छोड़ के मार्केट में पहुंच गए बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन भैया 6% है, बैंक देती है 3%, तो 3 - 6 इज -3. -3% रिटर्न आ रहा है आपके पास, वो आपको नहीं चाहिए. कल को मान लो आपने आज 1 जनवरी 2021 में आपने 100 रुपए का कोई आइटम खरीदा. अब अगले साल गए वही सेम आइटम खरीदना है 1 जनवरी 2022 में, and you got it for 106 rupees. Now imagine you have invested 100 rupees in your bank account last year, 1st January 2021, and next year you go to the bank, हाँ साहब मेरे पैसे वापस निकाल दो, 100 रुपए चाहिए मुझे, जाके वही आइटम खरीदना है. आप गए बैंक के पास कि हाँ साहब लो 103 रुपए. आप गए मार्केट लेने की, पता चला 106 रुपए का. ये तो डिफरेंस ऑफ 3 रुपीज क्यों हो गया साहब? इन्फ्लेशन बढ़ गया. पैसे आपके धीरे भाग रहे थे और जो महंगाई थी वो आपसे तेज भाग रही थी, उसने आपको बीट कर दी और आप पीछे रह गए. सो ऑलवेज इन्वेस्ट इन सच काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स विच हैज ओवर एंड अबव रिटर्न फ्रॉम
इन्फ्लेशन. सो बुक में भी किताब में बात लिखी गई है ये कि ऑलवेज अर्न ओवर एंड अबव द इन्फ्लेशन. लर्न टू स्पेंड मनी अर्नेस्टली, ध्यान से, सिंसियरली पैसे स्पेंड करना है. और ये बुक सिर्फ 144 पेजेस के लिए, बहुत ही पतली बुक लिखी गई है. मुझे से बंदे के लिए बड़ा मुश्किल काम था मेरे लिए किताब लिखना जस्ट एट द एज ऑफ 24. कि बड़ी मुश्किल बुक लिखी है मैंने, ऐसे हताश होके कि हाँ भैया ऐसा बुक करके लिख के खत्म करो. सो मैंने लिखी, फिर भी मैंने लिखी है. दिस इज माई सेकेंड बुक. फर्स्ट मैंने आई नेवर लॉन्च्ड इट. मेरी सेकंड बुक कभी लॉन्च नहीं हुई है. सॉरी, माई फर्स्ट बुक नेवर गॉट इट लॉन्च. मैंने चेक करवाया था लोगों से, पीवर फाइंडिंग इट हार्ड. सो मैंने बुक को वापस से लिखा, सिंप्लीफाई करा, आसान शब्दों में बनाया, फिर मैंने उसको रिलीज करा है. सो ये बुक ये अभी अमेजोन पे है, amazon.in पे है ये बुक. सो वहाँ जाके खरीद सकते हैं. कोई महंगी किताब नहीं है, 299 रुपीज़ की ही है. कोई महंगी किताब नहीं है. यू कैन पुट दिस मच अमाउंट ऑफ मनी ओवर क्रिएटिंग योर नेटवर्थ. सो इस बुक में सिखाया गया है दैट फर्स्ट इनकम, एक्सपेंसेस और बजटिंग के बारे में, कि आपको इनकम कैसे अलग करनी है, एक्सपेंसेस कैसे संभालने हैं. लोगों को एक्सपेंसेस संभालने नहीं आते हैं. एक्स्ट्रा वेकेंटली लोग पैसे खर्च करते रहते हैं अपने. हाय तनुश्री. Yeah, I was waiting for you. If you have, yeah, I remember you have any questions, you can ask me over here. I'll bring you live. You just need to say, please add me in, so we can talk about it. Then there are wealth creators and eaters का एक chapter है उसमें. So इस book में एक chapter है wealth creators and eaters. किन चीजें helps you in creating your wealth, and what are the other things which depreciate your wealth. कहीं अगर आपके पैसे बढ़ते हैं तो कई ऐसी जगह भी हैं जहां आपके पैसे घटते हैं. जैसे लाइक राइट नाउ आई स्पोक अबाउट इन इन्फ्लेशन विच डेप्रिशिएट्स योर वैल्यू ऑफ द मनी इफ इन्वेस्टेड इन रॉन्ग एसेट्स और सेव्ड इन रॉन्ग एसेट्स. सो रिमेंबर दिस थिंग. सो यहाँ पे उसकी बात होती है. देन हाउ मच लाइबिलिटी शुड बी टेकन for what I said. Just a second guys, I am just dropping in. Tanushri would like to join the call. Okay. Just a second guys, I don't know. Okay. Tanushree, can you please request me to join the call? I cannot do it from my end. I'm sorry guys, this is just taking a bit. I don't know why this iPad is not working properly. Okay, so Tanushri, you need to request me to go live, so I'll accept your, this thing. I'll accept your request. I'm trying to, send you an invitation, but I can't. I don't know why. Maybe I'm not following you, that's why. Is it so? Okay. Guys, I'm using 2 accounts at this moment. So, yeah, it's done. To have her on board, if she accepts. I'm so sorry, I'm using 2 accounts at the same time, so there are people from both these sides. Anyway, so we'll wait till she joins. Oh, okay. So, yeah. So, yeah. Okay. So yeah, I was talking about with the wealth creators and eaters. क्या हमारी wealth को चीज़ें बढ़ाती हैं और क्या depreciate करती हैं. Then it's about prioritizing your goals. You need to create your own goals, which makes you decide that what kind of life would you like to achieve.
क्या आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, आपको कल का बना हुआ ताजमहल चाहिए? डू यू वांट टुडेस लाइफ और टुमारोज ताजमहल? ये बहुत ही जाकिर खान की काफी फेमस लाइन है। कल का यू नो आज का जो जुमले तरह मत दिखाओ, कल का ताजमहल कहाँ है? सो वहीं से बात मैंने उठाई है कि कल का ताजमहल देखना है। सो वही है जिसके बारे में बात करी है। गोल्स को कैसे समझना है, गोल्स को कैसे बनाना है, उसके बारे में बताया गया है। देन इट्स अबाउट म्यूचुअल फंड्स। सो म्यूचुअल फंड इस पूरी इन्वेस्टमेंट का कोर पार्ट है, इस पूरी बुक का कोर पार्ट है, जिसमें बताया गया है कि आपको म्यूचुअल फंड कैसे इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। बिल्कुल बेसिक से बुक की बहुत खासियत बात ये है कि कुछ भी इतना कॉम्प्लेक्स नहीं लिखा गया है, बहुत ही सिंपल सिंपल तरीके से समझाया गया है। वो सब चीजें इसके अंदर हैं। स्कीम्स अलग अलग तरीके कैसे होती हैं, एएमसी क्या होती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज क्या होती हैं, उसके अंदर स्कीम्स कैसे काम करती हैं, फंड के अंदर स्कीम कैसे काम करती है। जो लोगों को बहुत कॉम्प्लेक्स सुनने में लगता है उतना कॉम्प्लेक्स ये है नहीं। सो उसके बारे में बात करी गई है कि चीजों को कॉम्प्लेक्स कैसे नाम बनाए। फिर डिफरेंस, फिर हाँ इसमें ये बताया गया है कि आपको कैसे अपने लिए स्कीम चूज करनी है। आपको मैंने नॉलेज दे दी, बताया नहीं कि उसमें से आपको चूज कैसे करना है, तो उसमें चूज करना भी सिखाया गया है कि आपको कैसे स्टडी करना है, आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से म्यूचुअल फंड कैसे चूज करें, वो भी बताया गया इसके अंदर। देन अलग अलग स्कीम्स को कंपेयर करना सिखाया गया है, वो सब चीजें हैं। देन देयर आर समथिंग लाइक सेबी, कि आपको क्या क्या सर्विसेज मिलती हैं, आप कैसे प्रोटेक्टेड है मार्केट में, आपके पास क्या राइट्स हैं, कैसे म्यूचुअल फंड खरीदना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, और डॉक्यूमेंटेशन, योर राइट्स, योर इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन, वो सब चीजें देयर आर नॉर्म्स। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव टुक इट फ्रॉम समवन एल्स, मुझे नहीं पता था, आई कॉपीड इट from different websites, and I took reference from books. So they are facts. So it's like a law बना दिया गया, चाहे जो भी लिख ले, law is gonna be same, right? It's a income, like a income tax में law होता है ना, like 80C is there कि 80C में 1.5 लाख का मिलेगा बेनिफिट, इट्स अ लॉ। चाहे उसको मैं लिखूं इंग्लिश में किसी तरीके से लिख दूं, रहेगा तो वही ना। सो दैट थिंग इज देयर। लेट्स टॉक अबाउट इंश्योरेंस। इंश्योरेंस की बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज है। लोग समझते हैं कि इंश्योरेंस कोई भी ले लो यार, सब सेम ही होते हैं, या मैंने अपने फैमिली में खुद देखा है, अपने नोन रिलेटिव में देखा, क्या करते हैं, LIC वाला बंदा आया, सर ये करवा लो, कर दे यार, जो तेरी इच्छा हो कर दे यार, वो बंदा करवा के ले जाता है, 22% की कमीशन आपकी गई, वो तो खा गया जिसने जो बंदा ने करवाया था। और आपके घर के रिश्तेदार ही होंगे, लिख के दे रहा हूँ मैं, आप घर में रिश्तेदार ऐसा बंदा निकल आएगा जो LIC वाला काम कर रहा होगा। तो बच के रहिए उन सब चीजों से। इंश्योरेंस बुरा नहीं है, इंश्योरेंस बुरा नहीं होता है। इंश्योरेंस इज अ वेरी गुड कंपोनेंट टू सेव योर लाइफ, नॉट टू इन्वेस्ट। इंश्योरेंस में आप इन्वेस्ट नहीं करते हैं, इंश्योरेंस अपनी लाइफ बचाते हैं अपनी। कल को आपको कुछ हो जाए, आपकी फैमिली को उतना अमाउंट मिले जिससे करंट लाइफस्टाइल सस्टेन हो सके। नाउ व्हाट आई मीन बाय करंट लाइफस्टाइल इज दैट, let's assume you have 50,000 rupees expenses that cost your life every month. अब हर महीने 50,000 रुपए का खर्चा करते हैं, तो वही 50,000 रुपए आपकी लिविंग कॉस्ट है। That's the value of your existence every month. So आप वो 50,000 रुपए आपको किस तरह हर महीने मिले, तो उसमें कई सारे कंपोनेंट, इसमें इन्फ्लेशन भी होता है। 50,000 रुपए आज, 50,000 रुपए आज से 10 साल बाद मान लो आपको यू आर डिजीज्ड, द अर्नर इज डिजीज्ड, और उसकी फैमिली में दो जितने भी मेंबर्स हैं उनके पास में कोई अर्निंग बंदा नहीं है आपके अलावा। सो उसको 50,000 रुपए प्लस इन्फ्लेशन मान ली, आज 50,000, आज से 10 साल बाद वो 60,000 की रिक्वायरमेंट बन जाती है। सो 60,000 रुपीज will be required every month. वो गैप कैसे फुलफिल करेंगे? That is when insurance plays a part. Now अब कैसे निकालेंगे कि आपकी वैल्यू 60,000 है, 70,000 है, 90,000 है, लाख है, जो भी है, तमाम जवाब जो भी है, there is a value called human life value. आपकी अर्निंग कर रहे हैं, आपकी वैल्यू है जिंदगी में, there is a value for your existence. लर्न दैट वैल्यू। सो इस बुक में वो भी लिखा गया कि ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है। यू विल लर्न, डू इट। देन इट्स अबाउट गोल्ड। लोग
हिंदुस्तान और गोल्ड चिपक चिपक के चलते हैं। सब गोल्ड इकट्ठा कर लो, घर के सारे ही गोल्ड सेविंग एलिमेंट्स, सॉरी लाइफ सेविंग एलिमेंट गोल्ड होता है। कुछ हुआ गोल्ड बेच दो, कुछ हुआ गोल्ड बेच दो। सो वही है, गोल्ड कैसे खरीदना चाहिए, कब खरीदना चाहिए, कब नहीं खरीदना चाहिए, सारी इसके बारे में लिखा गया है। देन दे आर टैक्सेशन के बारे में सिर्फ गाइड्स दी हुई है, कौन कौन से टैक्सेशन होते हैं, किन किन चीज़ों की होती है टैक्सेशन, तो सिर्फ वही बताया गया है कि टैक्स में लॉस कौन से होता है। नाउ देयर इज वेरी इट्स अ वाइड पिक्चर टू अंडरस्टैंड द टैक्स। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर, मॉडल। जिन सबके बारे में मैंने बात करी, बहुत सारी चीजें हैं वो जिनके बारे में मैंने बात करी है, सबको याद रख पाना नामुमकिन है। इसके लिए एक मैंने मॉडल क्रिएट करा है विच आई बीन वर्किंग ऑन फ्रॉम पास्ट 3 years। मैंने वो मॉडल फाइनली क्रिएट कर लिया है, एंड वो मैंने सोचा कि पहले उसमें आई वाज प्लानिंग टू अर्न फ्रॉम इट, बट आई हैव ड्रॉप्ड द आइडिया। नाउ आई हैव गोइंग टू पुट इट ऑन फ्री। मेरी वेबसाइट पे फ्रीली अवेलेबल है, weekendknowledge.com पे अवेलेबल है वो। यू कैन डाउनलोड योर ओन मॉडल, बट उसके बाद बिकॉज यू नीड टू रीड द बुक, you need to buy the book to make it understand कि मॉडल कैसे वर्क करेगा। now the bold letter is you don't need to learn anything about the finance to use that model। इसमें कुछ स्टेप्स लिखे गए हैं जो आपको स्टेप्स फॉलो करने होंगे। तो इसमें स्टेप्स लिखे गए हैं, यू नीड टू फॉलो। जैसे ये मॉडल के बारे में बात करी गई है, मॉडल में कई सारी चीजें दी हुई हैं विच यू नीड टू लर्न कि सब कैसे काम करेगा। जस्ट फॉलो दैट, अंडरस्टैंड योरसेल्फ। जो इससे पहले बुक में जितने चैप्टर्स हुए हैं सब में बारे में जो बात हुई है उनको समझिए। देन यू स्टार्ट यूजिंग दैट मॉडल स्टेप बाय स्टेप। ओके, दिस इज माय रिक्वायरमेंट, ओके दिस इज हु आई एम। साइड बाय साइड आपको सपोर्ट मिला हुआ है उसमें। यू विल यूज सम लिंक्स, यू विल यूज सम शॉर्टकट्स विदाउट लर्निंग व्हाट इज फिनांस। बुक का बेसिक एजेंडा यही था कि भैया लोगों को बिना फिनांस समझाए फिनांस डिलीवर करनी है। जो लोग 22-23 साल की उम्र में दे स्टार्ट अर्निंग, दे डोंट नो, रेकलेसली स्पेंड कर रहे होते हैं, बेवकूफों की तरह स्पेंडिंग कर कर चले जाते हैं। दे बाय लेविश लाइफस्टाइल्स, दे बाय लेजर्स दैट दे डोंट नीड, they start buying things that they don't want to, but they do it to make up market themselves into the society। आप एक पार्टी में गए, वो अपने घर गए, आपने घर गए, सब खत्म हो गया बॉस। आपने जो एक ड्रेस अपनी शादी के लिए बनवाई थी उसकी वैल्यू तब तक ही तो लोग देख रहे हैं आपको, आप घर चले गए, उस वैल्यू उस दिन तक खत्म हो गई। नाउ व्हाट, you bought a fucking 15,000 rupees dress, then what are you going to do with it? Are you going to eat it? कि आपको घर में क्या आपको खाना दे रही है? So learn to spend earnestly, so you know what you're going to do with your money। that's the basic component about money। तो उसके बारे में मॉडल में आपको मॉडल यूज करने को मिलेगा। यू विल बी एबल टू जगल बिटवीन दी मॉडल, वो एक चीज है। फिर उसके बाद बुक फिर एंड में जाते जाते फाइनेंशियल बिहेवियर के बारे में बात करती है, दैट व्हाट आर योर फाइनेंशियल बिहेवियर। इवन दो ये स्टॉक मार्केट के लिए चैप्टर लिखा गया था अबाउट फाइनेंशियल बिहेवियर, बट फिर भी मैंने इसके अंदर आई इंक्लूडेड इट इनटू दिस बुक बिकॉज पीपल गो थ्रू डिफरेंट फेजेस व्हाइल इन्वेस्टिंग। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया ना, बूफे में लोग जाते हैं और बूफे में बहुत सारा खाना पड़ा होता है, लोग देख देख के खाते हैं कि यार इसने क्या खाया वही ले लेता हूँ, अच्छा ये क्या कर रहा है वही कर लेता हूँ। लोग पीपल डू इंजीनियरिंग, बहुत ही फेमस मीम है इंडिया का, पीपल डू इंजीनियरिंग बिकॉज बाकी सब कर रहे हैं, जो लाइन में आ रहा है लग जाओ भाई, सब वही करेंगे। सो यू गेट इट कि यही बहुत इश्यू है हिंदुस्तान में कि लोग चली बोली बातों में चलते हैं, जो बाकी कर रहा है वही कर लेते हैं। we will follow the trend। So try and understand that there is no trend until unless you don't have the money in your pocket। You cannot run behind n number of goals till your death। You need to have limited goals, मगर उनमें से एक बेसिक होना चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम। Let's say we'll talk about financial freedom। आपको you want to start a family, let's say you want to have a family, you're going to have kids, you want to buy home, you want to create a wealth for your your children। सारे goals point by point लिखिए।
put all the goals and their values is right into this model. Now I'm telling you what's the connection between the model and the financial freedom, because that thing is not there in the book. Now use that all the goals in your model and then think कि मुझे क्या क्या गोल्स अचीव करने हैं अगले 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में. इट्स फाइन कितने भी साल का हो, मगर स्टार्ट दैट मॉडल विल गिव यू कंक्लूसिव स्टोरी दैट व्हाट शुड बी द एक्चुअल वैल्यू दैट यू शुड बी अचीविंग. जिसमें मैं दिखाता हूँ एक कि अगर दिख जाएगा इसके अंदर कि व्हाट शुड बी द कंक्लूसिव स्टोरी. या सी, सो लास्ट में आपको एक सिंपल लाइन आंसर मिलेगा कि एक लाइन में आपको आंसर मिल जाएगा कि आप कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, व्हाट यू शुड बी द मिनिमम पे आउट, कि हाउ मच यू शुड बी इन्वेस्टिंग एंड हाउ मच डू यू सेव एज ऑफ डेट. मैं वादे के संग कह सकता हूं आपके गोल्स आपकी करंट लाइफस्टाइल से बहुत बहुत बड़े होंगे. एंड दिस बुक विल हेल्प यू टू अचीव इट. कि व्हाई यू शुड बी थिंकिंग प्रॉपरली, centric about your goals. Think about getting a financial freedom. जिंदगी भर भागने की जरूरत नहीं है. समझ जाइए इस बात को. If you even want to buy a Rolls Royce, buy it. Who fucking it's answering your capability of buying it. Do it. Put it in the goal. This book will help you to put it in the goal. मान लो आपको 10 करोड़ की आती, डाल लो अपने उसमें गोल में कि हाँ भैया आज से 15 साल बाद या 20 साल बाद मैं खरीदना चाहता हूं. Put it and then see how much money you need to invest per month to achieve that goal 20 years down the line. So they both adjust the inflation and other factors which will increase the value of your goal. आपको कुछ नहीं करना, आपको बस डेटा डालते जाना है, कट डेटा डालना है. पता है आपको गोल चाहिए, घर खरीदना है, घर की वैल्यू 10 लाख रुपए, डन. गाड़ी की वैल्यू 1 करोड़ रुपए, डन. डालते जाओ. दिस बुक विल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट द मनीज, एवरीथिंग. इसमें आपसे पूछेगा कि व्हाट्स योर रिस्क का एक टेस्ट है अपने आप में, आप वो टेस्ट करिए. को पता चलेगा कि मैं कितना रिस्क ले सकता हूं. लोग कह रहे हैं तब नहीं चलना है. एक मान लो किसी ने एक आपने देखी होगी स्कैम 1992, रिस्क है तो इश्क है, वो तो निकल लिया. ही वेंट टू रॉकेट. उसका एक दोस्त था जिसने हु हैड अ सुसाइड, इफ यू रिमेंबर. उसने कहा जो वो कह रहा है, जो हर्षद मेहता ने कहा, ही स्टार्टेड फॉलोइंग इट विदाउट नोइंग कि मेरी रिस्क कैपेसिटी क्या है, क्या होगा बाद में. Harshad Mehta had billions in his account and he was working on thousands and they are thinking that हम दोनों same level पे हैं. No boss, they are different level पे. बिलियन है, वो बिलियन पे रिस्क ले सकता है और आपके पास हजारों हैं. और हजारों पे कितना रिस्क लेंगे आप? मिनिमल ले सकते हैं आप रिस्क. So stop running behind the crowd. जो उस क्राउड के फ्रंट में लीडर होगा ना, उसका शायद तुक्का सही लग गया, आपको लगना शुरू होगा कि सब पूरा बाजार ही हरा है, सब भागते जाओ उसके पीछे. नो, इट्स नॉट दैट वे ब्रॉस. यू नीड टू फॉलो दी स्टेप्स वेयर यू फील कंफर्टेबल. वॉक स्लोली, वॉक प्रॉपरली, वॉक सेंसिबली एंड देन टेक डिसीजंस. हो सकता है बुक को पूरा पढ़ के आपको सब कुछ समझ में ना आए. यू माइट ऑल्सो फुट योर lose your foot, my bad, lose your foot at some point. या पता नहीं यार कहाँ ही चली गई किताब, नहीं समझ में आ रही है. No problem. Go through the book, complete it, and then go again. It's fine ना. आप कोई भी किताब एक बार पूरी खत्म नहीं कर पाते हैं, आप कोई भी कोर्स एक बार में खत्म नहीं कर पाते हैं. You follow some baby steps. Take some time. इसलिए बुक सिर्फ बहुत ही पतली लिखी गई है, 144 वर्ड्स. आप सिर्फ एक पेज एक दिन में पढ़िए. 6 3 18, 3 महीने, माफ करिएगा, 6 महीने में बुक खत्म हो जाएगी. करीब साढ़े 5 महीने में. ये 5.5 महीने आपको इंटायर लाइफ को संभालने में मदद करेंगे. नाउ यू सी, ये 5.5 महीने चाहिए या पूरे जिंदगी भर चाहिए, जिसके बारे में बात कर रहा था, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन. आज का सामान चाहिए, कल का ताजमहल चाहिए, इट्स योर चॉइस. क्या करना है वो आप लोग देखो, इट्स योर चॉइस. मेरा काम बुक लिखना था, बिके ना बिके, it's none of my business. It was my joy that I fulfilled.
Now it's your job whether you feel it or not, because I am on the verge of becoming a financial freedom person. मेरे सिर पे कोई लोड नहीं है, and I'm happy as fuck. Why do I care if you guys, if you बेटा मेरे लिए क्या है ये? It's a simple free product that I have written. मेरे पास मेरे लिए सैलरी आती है, मुझे इस बुक से कोई लेना देना नहीं है, नहीं बिके कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे. But this book is all for those people who really want to get out of this zone. This book is a mere, philanthropic idea to put it out with people. Compassion है ये सिर्फ. This book is written out of compassion. कि ठीक है यार, लोग इस प्रॉब्लम से गुजरते हैं, कोई प्रॉब्लम, अब क्या करें, अब इन लोगों को प्रॉब्लम आती है, लेट्स फाइंड अ solution to it. And this is a solution that I have found. कि book के through soon we are going to soon we are going to come up with courses. I am planning to do some courses which is going to be very minimal cost. बहुत सस्ते कोर्सेस होंगे, I am still working on it. क्या अगर वो रिकॉर्ड हो सकते हैं, क्या कुछ चीजें हो सकती हैं, तो बहुत ही सिंपल कोर्सेस बनाएंगे. इस बुक के बेसिक यूज करना है जिंदगी भर. ये बुक काफी है, आप इस बुक को पढ़ लीजिए. दिस बुक इज फॉर योर एंटायर लाइफ. थैंक्स बनीत. थैंक्स फॉर योर एप्रिसिएशन. सो दिस बुक इज फॉर एंटायर लाइफ. आप सोच सकते हैं 5.5 months, that too अगर per page per day till your death. Financial freedom achieved. मत भागो जिंदगी भर किसी चीज के पीछे. नहीं, कुछ नहीं में रखा, कुछ नहीं लगा. जॉब मिलने के बाद जिंदगी बर्बाद हो जाती है. इट्स वेरी बोरिंग, इट्स वेरी टायरिंग. यू कीप योरसेल्फ स्टिक टू 9 to 5 जॉब एंड अचीव नथिंग. आपको हर महीने वो सैलरी आती है, वो लगता है पता नहीं जॉब मिलने के बाद कौन सी दुनिया अचीव कर लोगे. इट्स नथिंग ब्रो. यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट. इट्स जस्ट बोरिंग लाइफ विद बोरिंग पीपल. एंड यू फील दैट कि पता नहीं जॉब मिल गई, पता नहीं क्या मिल गया आपको. एक जॉब से 25,000 की नौकरी 50 की हो जाएगी, 50 के 75, 1 लाख, 1.25 लाख कमाते रहो जिंदगी के बाद. 1.5-2 लाख में आराम से पहुंच जाओगे. इवन इफ यू हैव अ गटर माइंडसेट. डू यू वांट टू बी देयर, or do you want to be sensible people, or do you want to have a really great thinking? What do you want to do? It's your choice. People eventually grow within themselves. You just need to pour the right seed in your knowledge. सही बीज बोओगे, सही बीज मिलेगा. बेकार बोओगे, you know the result. So it's your life. It's your choice. Now I'm tired. Now if 3 people have any questions, you can ask me. You can ask me to join, make you join. I can make you join. Otherwise, we'll put it off. Oh, it's 1 hour. I'm fucking speaking for 1 hour. Manit, Maninder, Chana. Yeah, do you have any questions? Just say yes, so I'll wait. Otherwise, I'll turn it off. Okay, so I'm turning it off. Thank you everyone for joining. Those who haven't, you can share my story. It will help me. Yeah. So you can share my story to other people. If you guys have any questions, you can join me live here. आपके लोगों को पता चलेगा that you went live. I want this book. Buy it, Baneet. Buy it. It's on Amazon. Amazon.in. Good that you want to buy this book. Do you have any questions, Baneet? Because I know you are interested about the stock market. No? Okay. With 2 bookmarks. Sure. Actually, you want bookmark? Okay, fine. Book tags. What are book tags? Bookmarks, right? So I got this 2-3 tags. I had these tags especially. I think it's definitely gonna solve your curious mind. So I had this bookmark with me. It's a wooden made bookmark. I got it engraved.
पहले मेरा काम यही था, so I got it engraved. It's मेरे पास 3 स्पेयर पड़े हैं, एक्चुअली 2 स्पेयर पड़े हैं, so don't worry, I'll send it to you. But for that you need to order me on my website. Do it from weekendknowledge.com. तो वहाँ से you put it, so I'll able to courier you. Okay, so I'll courier you from my end. मैं भी ज़्यादा किताबें बची नहीं, but yeah, it's fine. It will work. I remember, Baneet, you had some questions. If I'm not wrong, about the stock market, how these things work. So I think शायद सबका जवाब नहीं मिल पाया, but you'll also only learn about mutual funds, investment, having the right mindset and the rational thinking. It will help you to do it. Okay, guys, sayonara. Hope you had a great time. जो लोग बाद में ज्वाइन करेंगे, जो लोग देखेंगे, जो भी है. Okay, guys. Hope अगले वीकेंड पे कुछ अच्छा हो जाए. Okay, so bye bye, and thank you everyone whosoever joined earlier or later. And I'm glad कि जितने लोग भी आए, at least आए. Thanks a lot.